کہتے ہیں کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے مولا، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کے درمیان میں پروردگار نے رمضان کا مہینہ بھیجا تھا، مگر ہم اور آپ رمضان کے مہینے کی قدر نہ کر پائے، ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں عبادت نہ کر پائے۔ اگر یہ رمضان کا مہینہ پروردگار کے پاس میں جا کر کے یہ کہہ دے گا مولا تو نے مجھے اپنے بندوں کے بیچ میں بھیجا تھا، مگر میں تیرے بندوں کے بیچ میں گیا تھا، مگر تیرے بندے عبادت نہ کیے، تیرے بندے روزہ نہ رکھے، تیرے بندے نے رمضان کے مہینے میں تیری عبادت نہ کیے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ مہینہ پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کر دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کون سا چہرہ لے کر پروردگار کے سامنے جائیں گے؟ ہم کون سا چہرہ لے کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا، پروردگار تخت پہ بیٹھے گا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے، اور اگر پروردگار نے کہہ دیا اے میرے بندے میں نے تیرے درمیان میں رمضان کو بھیجا تھا کہ جا رمضان میرے بندے تیری مہینے میں عبادت کریں گے، میرے بندے تیرے مہینے میں مجھے راضی کریں گے، میرے بندے تیرے مہینے میں نفل نماز پڑھیں گے، میرے بندے تیرے مہینے میں فرض ادا کریں گے، میرے بندے تیرے مہینے میں واجب ادا کریں گے۔ اے رمضان میں نے تجھے بھیجا تھا، اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے 70 کا ثواب دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی تو نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا تھا، اس کے باوجود تو نے رمضان کے مہینے میں عبادت نہیں کیا تھا، اس کے باوجود تو نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر پایا، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارا چہرہ کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے، وقت ہے اللہ کو راضی کر لو۔ کیسے مسلمان ہو کہ اذان ہوتی ہے بستروں پہ سوتے ہو؟ کیسے مسلمان ہو ظہر کی اذان ہوتی ہے چوراہوں پہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہو؟ کیسے مسلمان ہو عصر کی اذان ہوتی ہے روڈوں پہ گھومتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیسے مسلمان ہو عشاء کی اذان ہوتی ہے بستروں پہ لیٹ کر موبائل میں بزی رہتے ہو؟ صاحب آج ہم بھی مسلمان ہیں، مگر آج 70 رمضان جنگ بدر کا واقعہ سنو۔ 313 صحابی ہیں، 313 کتنے محبت سے 313۔ جب مکے کے ظالموں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسلام کے ماننے والوں سے جنگ کریں گے، ہم اسلام کے ماننے والے سے جنگ کریں گے، یہ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جب یہ خبر تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کے کانوں تک پہنچی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا بلال جاؤ مدینے کے گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ تمہیں محمد الرسول اللہ نے بلایا ہے، محمد الرسول اللہ نے بلایا ہے۔ جتنے نبی کے صحابہ تھے ایک آواز پہ بھاگتے ہوئے نبی کے پاس میں آ گئے ہیں، مگر ہم اور آپ کتنے بدبخت ہیں کہ اذان ہوتی ہے مگر مسجد میں نہیں آتے ہیں، ظہر کی اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں آتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں آتے ہیں، مگر آؤ ذرا دیکھو صحابی رسول کی 313 صحابی رسول ہیں، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہے، پھر بھی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، بنگلہ دیش سے لے کر ترکی کی راجدھانی تک، اگر کسی مائی کے لال کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے تو قوم مسلم کا ہے۔ آج قوم مسلم مارا
جا رہا ہے، آج قوم مسلم کاٹا جا رہا ہے، آج قوم مسلم ستایا جا رہا ہے۔ کیوں ستایا جا رہا ہے؟ صاحب وہ 313 تھے تو اسلام کو فتح کر لیا تھا، جنگ کو فتح کر لیا تھا۔ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے بعد بھی روڈوں پہ ہمارا خون بہتا ہے، گلیوں میں ہمارا خون بہتا ہے، بازاروں میں ہمارا خون بہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ یہ ہے ہم نے فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قانون مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے نماز کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ ہے بربادی۔ اللہ اکبر۔ اگر تم طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دو گے تو تمہیں برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو قوم نبی کی شریعت کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم برباد ہو جایا کرتی ہے۔ 313 صحابی رسول حضرت بلال نے مکے کی دھرتی سے اعلان کیا، اور نبی کے ماننے والوں تمہیں نبی نے بلایا ہے، نبی نے بلایا ہے۔ اب سارے صحابی رسول جو اس وقت مسلمان تھے، ایمان والے تھے، وہ دوڑتے ہوئے نبی کے پاس میں پہنچے، یا رسول اللہ حاضر ہوں، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ نبی نے فرمایا صحابہ کتنے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 313 ہیں، 313 ہیں۔ 14ویں نمبر پر حضرت عثمان ذو النورین ہیں، مگر نبی کی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نبی نے کہا عثمان ذو النورین تم جاؤ، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، تم جاؤ۔ صرف 313 صحابی رسول ہیں۔ نبی نے فرمایا مکے کے ظالموں نے اسلام کو چیلنج کیا ہے، جنگ کا اعلان کر دیا ہے، کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری جان میری مال آپ کے قدموں پہ قربان ہے، آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ اشارہ آپ فرمائیے، جہاں آپ اشارہ فرمائیں گے آپ کے غلام چلنے کو تیار ہے۔ نبی نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، چلو بدر کے میدان میں۔ اللہ اکبر۔ 313 صحابی رسول ہیں۔ نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کمایا ہے وہ 313 صحابی رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ 313 صحابی رسول کو نبی نے لیا ہے، بدر کی طرف چل دیا ہے۔ مکے کے ظالموں نے دیکھا ہے، مکے کے یہودیوں نے دیکھا ہے، مکے کے آتنکوادیوں نے دیکھا ہے، تو کہا عمر کہاں جا رہے ہو، صدیق کہاں جا رہے ہو، اے صحابہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے تم بدر کے میدان میں جا رہے ہو؟ ہاں میں بدر کے میدان میں جا رہا ہوں۔ وہاں پہ کیوں جا رہے ہو؟ وہ لاکھوں کے تعداد میں ہے، وہ 2-3 لاکھ کے تعداد میں ہے، تم صرف 313 ہو، تم بدر کے میدان میں جا رہے ہو۔ آج تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، آج تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج تم برباد ہو جاؤ گے، آج تم مٹ جاؤ گے بدر کے میدان میں، تمہیں کافر کچل ڈالیں گے، تمہیں ظالم مار ڈالیں گے۔ وہ بہت لاکھوں کی تعداد میں ہے، تم صرف 313 ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے کہا تھا اے مکے کے آتنکوادیوں سنو، ہم نبی کے نام پہ جا رہے ہیں، یا جان دے کے آئیں گے یا جان لے کے آئیں گے، اگر وقت رہے گا تو ہم بتا دیں گے، ہم آتش سوجا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ چل دیے ہیں بدر کے میدان میں۔ جب پہنچے ہیں بدر کے میدان میں 313 صحابی رسول، تو دیکھا ہے لاکھوں کی تعداد میں کافر موجود ہیں، دشمن موجود ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس اسلحہ ہے، کسی کے پاس تگڑے تگڑے اونٹ اور گھوڑے ہیں، مگر آج جو اسلام کو چیلنج کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، زاہد رضا قادری انہیں قیامت تک کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ کوئی اپنی مائی کا لال ہے
जब बद्र के मैदान में एक तलवार साबित करते कि बद्र के मैदान में सहाबा के पास में तलवार था, एक भी सहाबा के पास तलवार नहीं था बद्र के मैदान में। सहाबी ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह उनके पास अच्छे अच्छे तलवार है, अच्छे अच्छे असलहा है, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं। या रसूल अल्लाह हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है? नबी ने फरमाया वो खजूर के दरख्त लगा हुआ है, उन खजूर के दरख्त के पास में जाओ, खजूर की लकड़ियों को तोड़ दो, लकड़ियों को तोड़ लो। साहबी रसूल ने लकड़ियों को तोड़ा है और खजूर की लकड़ियों से जंग बद्र में लाखों की तादाद से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। किसके कहने पे? हमें वो किसी दुनियादार के कहने पे खजूर की लकड़ी को लेकर बद्र के मैदान में नहीं जा रहे थे, बल्कि मदीने के ताजदार के कहने पे जा रहे थे। उन्हें मालूम था अगर खजूर की लकड़ी है मेरे हाथ में, मुस्तफा चाहेंगे तो लकड़ी को तलवार बना देंगे, मुस्तफा चाहेंगे तो लकड़ी को तलवार बना देंगे। 313 साहबे रसूल ने खजूर की लकड़ी को ले लिया है, बद्र के मैदान में पहुंचे। आजकल का वहाबी होता तो भाग लेता, कहता या रसूल अल्लाह आप कैसे हैं? खजूर की लकड़ी से तलवारों के सामने मुकाबला किया जाएगा। लेकिन नहीं, वो 24 नंबर नहीं थे, वो रसूल को मानने वाले थे। वहाबी नहीं थे, सहाबी थे, सहाबी। या रसूल अल्लाह इशारा आप फरमाइए, इशारा आप फरमाइए। सारे साहबे रसूल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, इबादत करना शुरू कर दिया, इबादत करना शुरू कर दिया। नबी ने मुसल्ला बिछाया, रो करके दुआ मांगना शुरू कर दिया। मेरे मौला, मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में जो कमाया है वो बद्र के मैदान में लेकर के आ गया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे पड़ूंगा, इरशाद फरमाया। नबी दुआ करते, मौला पूरी जिंदगी की कमाई आज बद्र के मैदान में लेकर के आया हूं, मौला अगर ये मिट जाएंगे तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, मौला अगर ये मिट जाएंगे तो कलमा पढ़ने वाला कोई ना होगा, मौला अगर ये मिट जाएंगे तो कुरान की हिफाजत करने वाला कोई ना होगा। मौला जो मैंने पूरी जिंदगी में कमाया है वो बद्र के मैदान में लेकर के आया हूं। नबी दुआ कर रहे हैं, नबी दुआ कर रहे हैं। इतने में नबी के कंधे से चादर मुबारक खसक कर जमीन पे गिरी है, जमीन पे गिरी है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने चादर को उठाकर नबी के कंधों के ऊपर रखा। 3 मरतबा चादर जमीन पे गिरी, सिद्दीक़ अकबर ने उठाकर कंधों पे रखा। साहबे रसूल फरमाते हैं 5 मिनट के बाद मैंने देखा हजरत जिब्राइल आसमान से 5000 फरिश्तों को लेकर के जमीन के ऊपर आ रहे हैं, जमीन के ऊपर आ रहे हैं। 5 मिनट के बाद फिर देखे हजरत मीकाईल 3000 फरिश्तों की जमात को लेकर जमीन पे आ रहे हैं। उधर नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देखा 5 मिनट के बाद हजरत इसराफील 3000 फरिश्तों को लेकर जमीन पे आ रहे हैं। 5 मिनट के बाद हजरत मलकुल मौत फरिश्तों की जमात को लेकर जमीन के तरफ आ रहे हैं। नबी ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम क्या करने के लिए यहां पे आए हो? जिब्राइल आए हैं, बात समझ में आ गई कि मदद करने के लिए आए हैं, मीकाईल मदद करने के लिए आए हैं, इसराफील मदद करने के लिए आए हैं। मगर मलकुल मौत तुम क्या करने के लिए आए हो?
क्या तुम मेरे उम्मतियों की रूह निकालने के लिए आए हो? क्या तुम इन साहबे रसूल की रूह को कब्ज करने के लिए आए हो? मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिब्राइल आपकी तरफ आए हैं, इसराफील आपकी तरफ आए हैं, मीकाईल आपकी तरफ आए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तरफ नहीं आया हूँ, बल्कि आपके दुश्मनों की तरफ आया हूँ, आपके दुश्मनों की तरफ आया हूँ, इन जालिमों की तरफ आया हूँ, इन काफिरों की तरफ में आया हूँ। या रसूल अल्लाह, इशारा आप फरमाइए, या रसूल अल्लाह, इशारा आप फरमाइए। काफिरों का रूह कब्ज करना यह हमारा काम है, नारे जहन्नम में पहुंचाना यह खुदा का काम है, यह खुदा का काम है। बद्र के मैदान में इस्लाम को फतेह मिली, 313 साहबे रसूल इस्लाम को फतेह मिल गई, इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। बद्र के मैदान में काफिरों से मुकाबला जीत लिया 313 सहाबा ने। वापस आ रहे हैं, खुशियों का जश्न हो रहा है, फतेह का जश्न मनाया जा रहा है मदीने की गलियों में। इतने में मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान जुन्नूरैन कहा, मेरी बेटी का हाल क्या है? जो मुस्तफा ने उस्मान जुन्नूरैन को छोड़ करके गए थे, सरकार की बेटी हजरत रुकैया, हजरत रुकैया की तबीयत खराब है। मुस्तफा ने कहा, मेरी बेटी रुकैया का हाल क्या है? मुस्तफा घर पे नहीं गए। आज बेटियों की पैदाइश पे चेहरा बिगाड़ने वालों, कान खोल के सुन लो, बेटियों की पैदाइश पे चेहरा मत बिगाड़ा करो, चेहरा मत बिगाड़ा करो। ये रहमत है, रहमत है। अल्लाह बेटियों को भेजता है तो रहमतें भेजता है। मेरे नबी ने कितना प्यार किया है बेटियों से। मुस्तफा ने हाल लिया है बेटी का। खबर मिलती है हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया, बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मुझे कब्र पे लेकर चलो। घर पे नहीं जाएंगे, कब्र पे चलेंगे। अब ये 24 नंबर जो कहते हैं कि कब्रों पे जाना कहां से साबित है? कहां से साबित है? हम कहते हैं, साहब तुम बुखारी तो पढ़ते हो, लेकिन बुखारी के नशे में आकर पढ़ते हो। बुखारी पढ़ने के लिए नबी का इश्क होना चाहिए। बुखारी पढ़ने के लिए सीने के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। बुखारी पढ़ने के लिए आला हजरत का इश्क होना चाहिए। जब आला हजरत के इश्क से बुखारी पढ़ोगे फिर समझ में आएगा, वरना तो आज भी बुखारी पढ़ने से लोगों को बुखार आ जाता है। हम कहते हैं, जालिमों, हमसे क्यों पूछते हो कब्रों पे जाना कहां से साबित है? पूछ नबी से। बद्र के मैदान में कामयाबी मिलने के बाद मुस्तफा अपने घर पे नहीं गए, बल्कि बेटी रुकैया के कब्र पे गए हैं। बेटी रुकैया के कब्र पे गए हैं, तो कब्रों पे जाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, नबी कौनैन की सुन्नत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, आमिना के लाल की सुन्नत है। इसलिए मुसलमान बनो तो ऐसा बनो जैसा नबी के जमाने में थे, नबी के जमाने में थे। और साहब, ईद आने वाली है, ईद आने वाली है। बेटियों को बोझ मत समझो, बहनों को बोझ मत समझो। उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूं जो ईद के दिन लोगों को बुला बुला कर घरों में सेवइयां खिलाते हैं, मिठाइयां खिलवाते हैं, मगर अफसोस अपने बहनों को घर पे बुलाने के लिए भी तैयार नहीं है। यार, अगर ईद की नमाज पढ़ने जाया कर, ईद की नमाज पढ़ने जाया कर, और ईद की नमाज पढ़कर जब वापस आया कर तो मेले में मत जाया कर, बल्कि बहनों के घर पे जाया कर, बहनों के घरों पे जाया कर।
बहनों का दिल बहुत बड़ा हुआ करता है, बहुत बड़ा हुआ करता है। अल्लाह ने बेटियों का दिल बहुत बड़ा किया है। जब हम स्कूल जाते थे, मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे, तो हमारी बहनें हमारे कपड़े को साफ किया करती थी, हमारी टिफिन में खाने रखा करती थी, भाई भूख लगेगा तो खाना खा लिया करना। लेकिन आज बहनों को भूल गए हम, आज बेटियों को भूल गए हम। शादीद का दिन आ रहा है, घरों पे बहनों के जाया कर, सवाइयाँ दे दिया कर, कपड़े दे दिया कर, ईदियाँ दे दिया कर। आज भी बहनें तेरे पैसे के मुहताज नहीं है। बहनों को अगर मोहब्बत है तो तेरे चेहरों की मोहब्बत है। भाइयों का मोहब्बत आज भी बहनों के सीने के अंदर है। आज भी बहनें इंतजार करती है, मेरा भाई परदेश में है, कब मेरा भाई घर पे आएगा, कब मेरा भाई मेरे घर पे आएगा, मैं भाइयों के चेहरों को देखूंगी, भाइयों के चेहरों को चूमूंगी। अल्लाहू अकबर। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, जब तुम घर जाया करो तो सबसे पहले घर पे जाने के बाद अगर कहीं किसी से मिलना हो तो बहनों से मुलाकात कर लिया करो, बहनों से मुलाकात कर लिया करो, बहनों से मुलाकात कर लिया करो। दिल देखना है बहनों का, दिल देखना है बेटियों का। तो देख, जब भाई की तबीयत खराब होती है, बहन दौड़ती हुई आती है हॉस्पिटल के करीब में, मेरे भाई की तबीयत कैसी है, मेरे भाई की तबीयत कैसी है, मेरा जेवर बिक जाने दो, मगर मेरे भाई की तबीयत सही हो जाए, मेरा भाई सेहतयाब हो जाए। वो बहनों का दिल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने वो दिल बहनों को दिया है। बहनें तेरी दौलत के मुहताज नहीं होती हैं, बहनों तो तेरे चेहरों को देखकर मोहब्बत का जज्बा ले लिया करती है। उन लोगों से पूछ जिनके बहनें नहीं हुआ करती हैं। आओ साहब, एक वाकया बताता हूँ। अल्लाह अकबर। एक लोग का वाकया है, 3 लड़के उसके घर के उसके हैं, एक बेटी है, 3 लड़के हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन का वाकया है, बाप का इंतकाल हो जाया करता है, बाप का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। बाप के इंतकाल के वक्त औलाद भी आते हैं, बेटे भी घर पे आते हैं। जनाजे की तैयारी कर दी गई है, जनाजे को जनाजे के टाइम पे पहुंचा दिया गया है। इमाम साहब जनाजे के पीछे खड़े हुए हैं, जनाजे पढ़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। इतने में एक फकीर आता है, सफेद लिबास पहन करके आता है, कहता है ओ मौलवी साहब जनाजे मत पढ़ाना। कहा क्यों नहीं पढ़ाना है? कहा मत पढ़ाना। कहा मामला क्या है? कहा मामला ये है कि मरने वाले ने हमारा 5 लाख रुपया कर्जा है, 5 लाख रुपया मेरा बाकी है। जब तक ये 5 लाख रुपया इसके घर वाले दे नहीं देंगे, हम जनाजा पढ़ने नहीं देंगे, हम जनाजा पढ़ने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। सारी महफिल खड़ी हुई है, जनाजा पढ़ने वाले लोग खड़े हुए हैं, इमाम साहब भी खड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में नमाजी भी खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। औलाद भी खड़ा हुआ है, 3 औलाद है, तीनों को सामने लाया गया है। एक तेरा बाप 5 लाख रुपया मुझसे लिया था, पता कर्जा कौन देता है? जब तक तुम कर्जा नहीं दोगे हम जनाजा पढ़ने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। ये मामला हुआ है, अभी तक जनाजा रखा हुआ है, कई घंटों का अरसा गुजर गया है, लेकिन वो 5 लाख रुपया कोई बेटा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बेटा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये खबर पहुंचती है घर के करीब में, जब बेटी के पास में ये खबर पहुंचती है, जब बेटियों के पास में खबर पहुंचती है, तो बेटी ने सुना है अपने कान से कि मेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है। बेटी ने कहा क्या मामला है, मेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं हो रहा है? लोगों ने कहा है ए बेटी तेरा बाप 5 लाख रुपया एक लोग से कर्जा लिया था, तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो कर्जा लेने वाला आ गया है, वो बोल रहा है जब तक के कर्जा नहीं देगा हम जनाजा पढ़ने नहीं देंगे। अब जनाजा पढ़ने के लिए उसे 5 लाख रुपया देना होगा, तेरा भाई देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। बहनों का दिल देखो यार, बेटियों का दिल देखो। बेटी ने अपने कान से झुमका निकाल दिया है, नाक से नथनी निकाल दिया है, पैर से पायल निकाल दिया है, सारे जेवर को दे दिया है। देने के बाद में कहा है इसको ले जाओ, उसको दे देना और कह देना जनाजा होने दे, अगर कम पड़ेगा तो मैं अपनी जमीन को बेच करके उसका कर्जा देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे बाप का जनाजा रुकने न देना, मेरे बाप का जनाजा रुकने मत देना।
औलादों पे फख्र करने वालों, बेटों पे नाच करने वालों, बहनों को हकीर नजरों से देखने वालों, बेटियों को गिरी नजरों से देखने वालों, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। मुसीबत के वक्त तेरी बेटियां काम आती हैं, मुसीबत के वक्त तेरी बहनें काम आती हैं। अल्लाह अकबर। जब उस लड़की ने जेवर दिया है, उस इंसान के पास में पहुंचा जो कर्जे की डिमांड कर रहा था। उसने कहा इस माल को कौन दिया है? कहा इनकी बेटी ने दिया है। कहा उसको बुलाओ। बेटी को बुलाया गया। बुलाने के बाद कहा बेटी ये जेवर ले, ये जेवर भी तुम्हारा है, ये पैसा भी तेरा है। बात यह है कि मरने वाले का मैं 5 लाख रुपया कर्जा था, मेरा कर्जा नहीं था, मैं कर्जा था। मैं देखना चाहता था कि मैयत का असली वारिस कौन है, मैयत का असली वारिस कौन है, इस पैसे का असली हकदार कौन है। आप भी पैसे देने के बाद ही आ जाती तो इन बेटे पैसा लेने के लिए तैयार हो जाते। इसलिए मेरा फैसला ये है, ये पैसे का हकदार भी तो है और दौलत का हकदार भी तो है। साहब बेटियों को बोझ मत समझा करो। आज ईद आने वाली है, ईद आने वाली है। उन भाइयों से मैं कहता हूं जो कमा रहे हैं परदेश में, जानो जब बीवियों के लिए कपड़े लिया करो तो अपने बहनों के लिए कपड़े ले लिया करो। जब अपने बच्चों के लिए कपड़े लिया करो तो बहनों के लिए भी ले लिया करो। बहनों को भी ईदिया दे दिया करो। हजारों रुपया तुम गुटके में खाकर उड़ा देते हो, दोस्तों को पार्टी में चाय पिलाकर उड़ा देते हो, लेकिन बहनों को तो 500 रुपया ईदी नहीं दे सकते हो। दिया करो, कपड़े दिया करो, ईदी दिया करो। बहनें इंतजार करती मेरा भाई दरवाजे पे कब आएगा। ईद के दिन अपने बहनों को घर पे बुला लिया करो। पूरे रिश्तेदारों को बुला लेते हैं लोग, मगर आज भी बहनों को पूछने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं साहब मेरी बहन से नहीं बनती है, मेरी बहन से नहीं बनती है, मेरी बेटी से नहीं बनती है। मैं कहना चाहता हूँ अगर बेटियों की शादी कर दिया है, अगर बहनों की शादी कर दिया है, ये तेरी सोच है कि बहनों से नहीं बनती है, ये तेरी सोच है कि बेटियों